नोट्स कल्चर, शून्य से शिखर तक। हेलो गाइस, वेलकम टू द नोट्स कल्चर शून्य से शिखर तक। आज मैं आपके सामने हूँ सौरभ पद्मशाली, पीएचडी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। आई एम हियर टू टीच यू अबाउट व्हाट प्रॉपरली द एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी इज। यू हैव हर्ड अबाउट द एंटोमोलॉजी बिफोर, आपने एंटोमोलॉजी के बारे में सुना होगा, लेकिन एंटोमोलॉजी जिसकी बात की जा रही है वो है क्या? एंटोमोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया? स्टार्ट करेंगे। एंटोमोलॉजी ये जो टर्म है ये आया है एक ग्रीक वर्ड से, जिसमें एंटोमॉन का मतलब है इंसेक्ट्स और लॉगस का मतलब है टू स्टडी। नाउ इससे हमको ये क्लियर हो जाता है कि एंटोमोलॉजी जो है वो है स्टडी अबाउट द इंसेक्ट्स। Now the question which next come to our mind is what these insects are. Entomology is study of insects, and अब insect क्या है? तो जो insect ये टर्मिनोलॉजी है ये आई है एक लैटिन वर्ड से, वर्ड है insectum। इस insectum का मतलब फिर क्या है? Divided into sections. As we have heard, the word is insects. It is made up of two words, in plus sects. The body is divided into sections. The organism whose body is divided into different sections or parts. We will see that the body of an insect will be divided into three parts basically. First is head, thorax and abdomen. How we define the insects? It is a tracheate arthropod whose body is divided into three parts: the head, thorax and the abdomen. Now, so here it is clear that entomology came from the Greek word and the insect came from the Latin word. Before we go to the insect level, let's get a brief history about it, where it is positioned in the systematic position. Hierarchical level of classification जो किया गया है different organisms का, उसमें इंसेक्ट बेसिकली है कहाँ पे? तो हम थोड़ा सा इसके लिए ब्रीफ में पीछे जाएंगे हिस्ट्री वाले पार्ट पे। नाउ द क्लासिफिकेशन हैज स्टार्टेड, द होल क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One is organism, that living organisms, and the non-living ones. The non-living ones comes in the plant kingdom and the living ones are coming under the animal kingdom. So here the kingdom is Animalia. This kingdom Animalia is divided into different phylums, as we heard, that Protozoa, Polyphera, Coelenterata, Nematyhelminths, Platyhelminths. Among this, one of the phylum is phylum Arthropoda. Under this phylum Arthropoda, our insect comes. Now, what the Arthropoda means? This Arthropoda also came from the Greek word arthros and poda. Here, arthros means jointed and the poda means legs. Now the arthropoda means the organisms which have joints in their legs. The legs, the complete leg is divided into different joint sections. So this is arthropoda. Now when we go to the classification of this arthropoda, it is divided into further into 7 classes. So what these 7 classes are inside the arthropoda, let's have a look into it. This phylum Arthropoda is divided into 7 classes. First is class Trilobita या Trilobita. Second, class Onychophora. Third is class
Crustacea. Fourth is our class Arachnida. Fifth is class Diplopoda. Sixth class Chilopoda. And at last, in the seventh class comes our class Insecta, also known as Hexapoda. So these are the 7 different classes under the phylum Arthropoda. Now what are the examples of these classes? Under the Trilobita, here comes the marine arthropods. They were previously in marine conditions, since we know that life originated in water, in the seas. So this was the most primitive arthropods, and these were marine, and now they all are totally extinct. So none of these their members are found now. They all are extinct, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विलुप्त हो चुके हैं. Coming to the second class, Onychophora, the example is Peripatus. The third class is class Crustacea. Crustacea, from the name only, it suggests that it is having the hard covering or the shell. जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग या शेल होती है जिसे क्रस्ट कहा जाता है, और इसी से इस क्लास का नाम आया क्रस्टेशिया. अब इस क्रस्टेशिया के मेंबर्स कौन कौन हैं? प्रॉन या झींगा, क्रैब केकड़ा, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स. तो ये सब आते हैं कहाँ? क्रस्टेशिया ग्रुप के अंदर, क्लास क्रस्टेशिया के अंदर. नेक्स्ट इज क्लास अरेक्निडा. अरेक्निडा के अंदर आते हैं फिर स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, ticks and mites. Now these ticks and mites are of for agricultural importance for us. We study the mites under the acarine section. Next class is class Diplopoda. Here the diplo means 2 and the poda, as we know, the poda means legs. In case of Diplopoda, in the body segments of organism, each body segment has 2 pair of legs. Each body segment has 2 pair legs. इसके कारण क्या होगा? बॉडी के हर सेगमेंट में 2-2 पेयर लेग होने के कारण नंबर ऑफ लेग्स जो बॉडी में है वो बढ़ जाएंगी. इसीलिए इसका एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं? मिलीपीड्स, मिलियन लेग्स वाले, या हिंदी में जैसे कनखजूरा भी कहते हैं. नेक्स्ट है क्लास चिलोपोडा. डिप्लोपोडा से चिलोपोडा में डिफरेंस क्या होगा? डिप्लोपोडा में 2-2 पेयर लेग्स थे हर बॉडी सेगमेंट में, लेकिन चिलोपोडा के केस में क्या होगा? सिर्फ 1-1 पेयर ही लेग होगा. इससे क्या होगा? नंबर ऑफ लेग्स जो है वो इंसेक्ट की बॉडी में कम हो जाएंगे. और यहां हमको इसलिए एग्जाम्पल याद करने में आसानी होगी. यहाँ पे एग्जाम्पल है सेंटीपीड्स या फिर गार्डन सेंटीपीड्स. सेंटी मतलब 100, तो 100 लेग वाले, 100 इज लेस देन द मिलियन. एंड लास्ट इज आवर क्लास इंसेक्टा और क्लास हेक्सापोडा. नाउ why it is known as hexapoda? Because it has 3 pair leg or 6 legs. So because of the 6 legs, it is also known as hexapoda. So with these we have come to our class Insecta. Now we have seen the plants and the animal kingdom, the 2 parts where the organisms have been divided. So insect कहाँ पे आता है? हमारा animal kingdom के अंदर. अब इस animal kingdom के अंदर different phylums हैं, phylum और protozoa, phylum porifera, coelenterata, प्लेटीहेल्मिन्स, नेमैटीहेल्मिन्स, और उन्हीं में से एक है इंसेक्ट का फाइलम, जिसे बोला जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा. नाउ वेयर फ्रॉम ये आर्थ्रोपोडा जो टर्म है ये कहाँ से आया? ये आया एक ग्रीक वर्ड से,
और मिला है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से। दो वर्ड्स कौन कौन से? आर्थ्रोस एंड द सेकेंड वर्ड इज पोडा। यहां पे आर्थ्रोस का मतलब है जॉइंटेड और पोडा का मतलब है लेग्स। सो इससे ये क्लियर होता है कि आर्थ्रोपोडा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लेग्स में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो कंप्लीट लेग है वो सेक्शंस में डिवाइडेड है और उन सेक्शंस के बीच में हमको जॉइंट्स मिलेंगे। ये जो आर्थ्रोपोडा फाइलम था ये कब इवॉल्व हुआ? अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो जो टाइम पीरियड है उसको डिफरेंट एराज और पीरियड्स में डिवाइड किया गया। तो जो आर्थ्रोपोडा था ये आपका इवॉल्व हुआ कैम्ब्रियन पीरियड। तो आर्थ्रोपोडा का इवोल्यूशन हुआ कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड का मतलब हम ये बोल सकते हैं 540 से लेके 510 मिलियन ईयर अगो। 510 से 540 मिलियन ईयर पहले आर्थ्रोपोडा इवॉल्व हुए ऑर्गेनिजम्स में। अब इन आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स क्या थे? क्या क्या कैरेक्टर थे इन आर्थ्रोपोडा के? फर्स्ट, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी जो थी वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड थी। अब यहाँ पे जो सेगमेंट हम टर्म बोल रहे हैं ये आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है सेक्शंस के साथ, क्योंकि हम ये दोनों वर्ड सिनोनिमसली यूज करेंगे। इसके लिए ध्यान रखें, जब ये कंप्लीट बॉडी है इसको ब्रॉडर सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा तो इन सेक्शन इसको बोला जाएगा सेक्शंस। जो ब्रॉडर पार्ट्स होंगे वो आपके सेक्शंस होंगे, और जब इन पार्ट्स के सब पार्ट्स बनाए जाएंगे तो ये होंगे आपके सेगमेंट्स और ये होंगे आपके सेक्शंस। So here the complete body is divided into segments. They have sections and they are further subdivided into different segments. Next, the body of arthropods is triploblastic. Now here comes the term triploblastic. अब triploblastic भी दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिपल और ब्लास्ट, मतलब 3 जर्म लेयर्स। एज वी नो जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी डिफरेंट जर्म लेयर्स से मिलकर बनी होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो डिफरेंट ब्लास्ट या जर्म लेयर्स बनते हैं। अभी 3 जर्म लेयर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और थर्ड है एंडोडर्म। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का एक सेक्शन कट करें, ये हमारा ऑर्गेनिज्म का आउटर बॉडी वॉल है, ये उसका इनर बॉडी वॉल या उसका एलिमेंट्री कैनाल है, और इसके बीच में होगा ये फील्ड पार्ट। तो ये वाला जो हमारा एरिया है, ये जो आउटर बॉडी वॉल वाला हमारा एरिया है पूरा, ये है एक्टोडर्म। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये है मीजोडर्म, और जो लास्ट ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, विसरल ऑर्गन का पार्ट है, ये है हमारा एंडोडर्म। तो इन तीनों जर्म लेयर्स से मिलकर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट कैरेक्टर इज बॉडी कैविटी। वी हैव सीन कि यहाँ पे ये पूरी इसकी जो बॉडी थी ये फील्ड है, और ये बीच का जो स्पेस है यहाँ पे ये खाली है। तो हम अगर इसको एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे सिलोमेट के केस में बोल सकते हैं शाइजोसिलोमेट्स, ट्रू सिलोमेट्स, यू सिलोमेट्स, ये ऐसे फर्दर डिविजन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इन आर्थ्रोपोड्स के केस में ये वाला जो स्पेस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक मीजोडर्म का पोर्शन यहाँ होता है और दूसरा मीजोडर्म का पोर्शन जो है वो एक्टो के साथ होता है। मतलब एक मीजोडर्म का लेयर एक्टोडर्म के साथ है और एक मीजोडर्म का लेयर है एंडोडर्म के साथ, और इनके बीच में ये जो स्पेस है ये खाली होता है, और इस खाली स्पेस को बोलते हैं हीमोप्लाज्म।
हीमोसिलोमिक कैविटी। कैविटीज का मतलब ये जो है ये खाली स्पेस है जिसमें एक लिक्विड फील्ड है। हीमोसिलोमिक कैविटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस खाली स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे हीमोसिलोमिक फ्लूइड, या ब्लड भी बोला जा सकता है आर्थ्रोपोड का। तो जिस कैविटी में हीमोसिलोमिक फ्लूइड बह रहा है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं हीमोसिलोमिक कैविटी। नाउ इससे थर्ड कैरेक्टर जो हमारा बनेगा वो ये है कि इंसेक्ट की बॉडी में एक हीमोसिलोमिक कैविटी होगी, और इस बॉडी कैविटी को या तो हम हीमोसिलोमिक कैविटी बोल सकते हैं या फिर हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं हीमोसील। So this body cavity is known as hemocoel, and the fluid inside it, the body fluid, is known as hemolymph. Now here the hemolymph is made up of two words again, the heme part and the lymphatic part. In the body of organisms or the human beings and mammals we see कि हमारे में अलग अलग कैपिलरीज और वेन्स होती हैं जिनमें एक में ब्लड बहता है और लिम्फ, तो दोनों सेपरेट हैं। लेकिन इंसेक्ट के केस में ये दोनों मिक्स हैं, तो इसका जो बॉडी फ्लूइड है वो कंपैरेटिवली दोनों का फंक्शन साथ में कवर करता है, क्योंकि एक ही बॉडी फ्लूइड है और वो ही एज अ ब्लड भी काम करेगा और एज अ लिम्फ भी काम करेगा, इसलिए उसको साथ में हीमोलिम्फ बोला जा रहा है। नेक्स्ट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यहां पे एक प्रोसेस होती है जिससे बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस या मोल्टिंग। हम दो टर्म यहां पे यूज कर रहे हैं, पहला होगा मोल्टिंग और दूसरा है मेटामॉर्फोसिस। मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किसी का ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन बींग्स में जनरली क्या होता है, आप ऑर्गेनिज्म जस्ट ग्रो करता जाता है साइज में, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। यहाँ पे लेकिन इंसेक्ट या दूसरे ऑर्गेनिजम्स, आर्थ्रोपोड्स के केस में क्या होता है, ये अपनी केचुली छोड़ते हैं, तो इस केचुली या पुरानी बॉडी कवरिंग को निकालने की जो प्रोसेस है वो उसकी मोल्टिंग। जब ऑर्गेनिज्म एक इंस्टार या एक पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल से दूसरा पार्ट आगे जाता है, एक नेक्स्ट स्टेप जाता है, उस बीच में वो अपनी पुरानी स्किन रिमूव करता है बॉडी से और एक नया स्किन बनाता है। इस प्रोसेस को बोला जा रहा है मोल्टिंग। और मेटामॉर्फोसिस मतलब मेटा मीन्स डिफरेंट, मॉर्फ्स का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो पूरी लाइफ साइकिल के टाइम पे जब एक ऑर्गेनिज्म एग स्टेज से लेके एडल्ट स्टेज जाते तक डिफरेंट फॉर्म्स में जाता है, एज वी कैन से द एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, तो इनमें दिखना जो इनका एक्सटर्नल अपीयरेंस में बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आते हैं। जो एग होता है वो लार्वा के जैसा बिल्कुल नहीं होता, लार्वा प्यूपा के जैसा नहीं होता, प्यूपा एडल्ट जैसा नहीं होता। तो ये 4 डिफरेंट मॉर्फ्स दिख रहे हैं, इनको ही हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फोसिस। और इसमें से जो लार्वल पार्ट होता है लाइफ साइकिल का, उसमें वो बार बार मोल्टिंग या केचुली चेंज करने की प्रोसेस, स्किन चेंज करने की प्रोसेस करता है। तो इससे किसी भी आर्थ्रोपोडिया इंसेक्ट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो हमको याद रखना है, उनके बॉडी में, जैसे ह्यूमन बॉडी के केसेस में हम याद रख सकते हैं हमारा जो हार्ट है वो किस तरफ है, हमारे वेंट्रल साइड पे। ऐसे समझते हैं ये किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ये जो उसका पीठ वाला भाग है ये है इसका डॉर्सल साइड, जो उसके पेट के तरफ का भाग है वो है इसका वेंट्रल साइड, और ये जो बीच में पाइप दिख रहा है ये है इसका एलिमेंट्री कैनाल या उसके विसरल ऑर्गन्स। फ्रंट साइड को यहां पे हम बोलेंगे एंटीरियर और बैक साइड को बोला जाएगा पोस्टीरियर। सो दिस इज डॉर्सल साइड, दिस इज वेंट्रल साइड। नॉर्मल कंडीशंस में ह्यूमन बींग्स, मैमल्स में हम देखते हैं ये हमारा वेंट्रल साइड होगा, क्योंकि हमारा डॉर्सल साइड हमारे पीठ की तरफ है। तो अवर हार्ट इज ऑन वेंट्रल साइड एंड अवर स्पाइनल कॉर्ड इज ऑन द
डॉर्सल साइड या नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सल पीठ की तरफ है। लेकिन इंसेक्ट या ऑर्थ्रोपोड में इससे जस्ट अपोजिट होता है। कैसे? यहाँ पे क्या होगा, इनका जो हार्ट है ये डॉर्सल की तरफ होगा, चेम्बर्ड हार्ट होता है इसलिए हम ये इतना बड़ा बना रहे हैं, जबकि इसका जो नर्व कॉर्ड है ये वेंट्रल की तरफ होगा और इस नर्व कॉर्ड में प्रेजेंट होंगे गैंग्लियाज। ओके, सो दिस इज हार्ट एंड द हार्ट इज ऑन डॉर्सल साइड। इसके अपोजिट जो हमारा नर्व कॉर्ड है इंसेक्ट का वो है किस तरफ, वेंट्रल साइड की तरफ। तो ये एक कैरेक्टर है जो हमको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो ये जो इंसेक्ट हैं या ऑर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे हमने बोला था यहाँ पे ऑर्थ्रोस का मतलब जॉइंटेड और पोडा का मतलब लेग्स, तो इनके अपेंडेजेस लेग्स जो हैं उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे ही इनके बॉडी पे जितने भी अपेंडेजेस होंगे वो भी जॉइंटेड होंगे या सेगमेंटेड होंगे और पेयर में होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे। अपेंडेजेस क्या होते हैं, किसी भी एक सेंट्रल एक्सिस जो होती है बॉडी की, इससे साइड्स पे जो भी चीजें पार्ट्स अटैच्ड होंगे, जैसे हमारी बॉडी पे क्या है, 2 हैंड्स 2 लेग्स, सो दिस आर ऑल अपेंडेजेस। सिमिलर इन केस ऑफ इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। तो ये जो साइड वाले यहाँ पे एडिशनल ऑर्गन जुड़े हुए हैं इनको अपेंडेजेस बोला जा रहा है। तो इंसेक्ट में ये सारे अपेंडेजेस कैसे होंगे, पेयर्ड। हम आगे देखेंगे एंटेना, लेग्स, विंग्स, ये सारे पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। और इन पेयर्ड अपेंडेजेस के कारण जो बॉडी होगी वो उनकी सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है अगर हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 पार्ट में सेंटर से स्प्लिट करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होगा। जितने पार्ट्स आपके लेफ्ट साइड होंगे उतने ही पार्ट उसके राइट साइड में दिखाई देंगे। सो दिस इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। तो छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज का जो लेक्चर वीडियो था, इसके बाद अब शाम का जो लेक्चर होने वाला 6 बजे होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अभी का जो लेक्चर हुआ उससे रिलेटेड जो MCQs है वो हमारी टीम नोट्स कल्चर टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाली है क्विज के रूप में। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आप लोग को आने वाले जितने भी अपकमिंग लाइव लेक्चर्स है उसका लिंक वहां पे मिल जाए। खुदा ना खास्ता अगर आप लोग को पता नहीं है क्लास होने वाली या फिर आपके दिमाग से निकल जाए तो जल्दी से उस व्हाट्सएप के मैसेज को देखकर आप लोग लेक्चर को ज्वाइन कर सकें। साथ ही साथ सारे लाइव लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे ही होने वाले हैं, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद।